Congress infighting intensifies after leader Digvijay Singh, who praised the organizational strength of the RSS. Three more veteran Congress leaders have heaped praise on the RSS. Congress MPs Shashi Tharoor, Rajni Patil and Congress leader Rashid Alvi came out in support of Digvijay's statement, which asserted that RSS is a strong organization, that a lot needs to be learnt from them. Digvijay Singh had also said how Narendra Modi rose from the grassroots to become the Prime Minister. Now, according to sources, Rahul Gandhi actually met Digvijay Singh in the Congress headquarters and dismissed his remark praising the RSS as taking a jibe, saying that he indulged in some mischief. Congress Neta's remarks came a day after veteran leader Digvijay lauded the RSS, but amid the massive showdown over his statement, he has taken a U-turn because, remember, he only praised its organizational abilities. He said that he never praised the RSS's ideology and there's nothing to be learned from Mahatma Gandhi's killer. Digvijay is facing a massive backlash, with some Congress leaders saying the Congress doesn't need to learn anything from a Godse organization. Now, Home Minister Amit Shah also commented on the controversy, saying that no one can reason with Rahul Gandhi, not even his own party members. ये जब मुझे फोटो दिखी तो मैं प्रभावित हुआ उससे, और मैंने इस बात को कहा कि देखिए, एक फर्श पे बैठा आदमी जो कि अडवाणी जी के चरणों में बैठा हुआ है, केशव भाई पटेल के ओथ सेरेमनी में, वो मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। ये संगठन की शक्ति है। Whatever I had to say, I've said already. And please understand one thing. For 50 years I've been in the Congress party, and I fought these communal forces wherever I was there, whether in assembly or parliament or in the organization. मेरा इन लोगों से बुनियादी विवाद है, विचारधारा का विरोध है, इसलिए मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं पूरी तरीके से इन विचारधारा के लोगों से लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूंगा। રાહુલ બાબા ભાઈ, હજી તમે થાકી ના જાઓ હારથી। બંગાળ અને તામિલનાડુમાં હારવાનું છે, નક્કી કરી નાખ્યું। અને 2029માં પણ ફરીવાર મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર। પરંતુ રાહુલ બાબાને સમજાવવાની ક્ષમતા મારી એ નથી। જેને પોતાના પાર્ટીવાળા ના સમજાઈ શકે એટલે વિરોધ પક્ષમાં ક્યાંથી સમજાઈ શકે ભાઈ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा एक भावना रखी है कि समाज में कोई भेद नहीं है। जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझे हैं वो अपने हैं, जो नहीं समझे वो भी अपने हैं। धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। हमारे तो 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है कोई भी पार्टी में। आप सोचिए, देखिए उनके बारे में आप उनसे ही पूछिए। मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो, और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। Well, let's go across to NDTV's Janendra Kumar for more. And Janendra, there's information that Rahul Gandhi actually met with Digvijay Singh and he dismissed this entire controversy as mischief. This at a time when, of course, the media is asking all Congress leaders for their comments on what Digvijay Singh said. बिल्कुल, देखिए, आज कांग्रेस का फाउंडेशन डे था और फाउंडेशन डे की जो मेन सेरेमनी थी, यानी फ्लैग होस्टिंग और प्रेसिडेंशियल स्पीच, उसके बाद पार्टी ऑफिस के अंदर चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया था तमाम सीनियर लीडर्स के लिए। और जब उसी चाय नाश्ते के दौरान सारे नेता इनफॉर्मली एक दूसरे से मिल रहे थे, चाय पी रहे थे, उसी दौरान दिग्विजय सिंह का आमना सामना हुआ राहुल गांधी के साथ। और राहुल गांधी ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में उनसे हाथ मिलाते हुए कहा कि कल आपने बदमाशी कर दी। और इस पर दिग्विजय सिंह और बाकी आसपास जितने नेता थे वो सब हंस पड़े। सोनिया गांधी भी वहीं पर थी। तो देखिए, एक तरीके से दिग्विजय सिंह का जो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट कल से चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट किया कांग्रेस में सुधार की जरूरत की बात कह के। राहुल गांधी ने उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया है और जब उनका सामना दिग्विजय सिंह से हुआ तो उन्होंने एक तरीके से उनके साथ मजाक ही किया कि आपने बदमाशी कर दी, और इस पर इसके अलावा कोई खास बातचीत नहीं हुई। लेकिन देखिए, बेशक राहुल गांधी ने बहुत हल्के अंदाज में इस विवाद को टालने की कोशिश की जब वो दिग्विजय सिंह से मिले, लेकिन मुद्दा जो है वो सीरियस है, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन का इशू है और कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो दिग्विजय सिंह की बातों से सहमत है कि पार्टी में सुधार की जरूरत है। हाँ, उन्होंने आरएसएस का जो एग्जाम्पल दिया उससे जरूर पार्टी के नेता थोड़े हैरान है कि आरएसएस का एग्जाम्पल दिग्विजय सिंह ने क्यों दिया, लेकिन संगठन में सुधार की जरूरत है, इस बात से लोग सहमत हैं। और जब दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट के बाद राहुल गांधी से आज उनका आमना सामना हुआ तो राहुल गांधी ने भी मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया और कहा कि कल आपने बदमाशी कर दी, और इस पर दिग्विजय सिंह भी हंसे, सारे नेता हंस पड़े। जी।